how can fintechs use Gen AI? पहले we all should take a deep breath, step back and understand that Gen AI is not a genie. वो अलादीन के लैंड से जीनी नहीं आया है, right? And every practitioner is screaming कि this is not a genie. All the excitement that is there, which is great. कल उठ के दुनिया नहीं बदलने वाली है Gen AI से. Gen AI के कुछ interesting use cases आ रहे हैं. Your picture generation, your video generation, जो भी आपके models हैं. अभी तक हमें जो use cases viable दिख रहे हैं, they are more in terms of, let's say, how do I make my communication simpler with my customer? Hi guys, welcome to another episode of our podcast, Talent First. Today we have Indrani, who's the analytics leader at Razorpay. I've known her for I would say 6-8 months. Have had very interesting conversations with her. One thing I really like is that as we see the fintech industry of this country is growing, she's one of those few leaders who have built their domain expertise in fintech. And I truly believe with the fintech landscape evolving, becoming bigger, penetration becoming bigger, people like her will play a very big role in how this country plays around with finance. So hi Indrani, hi, how are you? Thank you, Raghav. Thanks for having me. क्या चल रहा है? All good. Always busy. So that's my cue that everything is good. Perfect. So Indrani, as I was talking to you, elevator pitch, who is Indrani? Yeah. So I think I'm a very simple girl with heads in the cloud, feet firmly on the ground, eyes towards goal and heart with people. What is your goal? Cloud में क्या देखती हो आप? To answer that question, मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ, right? I come from a very humble background, right? And the fact that I'm sitting here today and doing this with you is, it's one more step towards whether it is, whether you call it being acknowledged, whether you call it a success, or whether you call it just having your own voice, right? So cloud में मुझे वो दिखता है कि how do I grow and grow people along with me, and that is the vision that I want to take along with me. So अब वो करना है. ज़्यादा अगर क्लाउड में उड़ने लग गई तो कहानी कहीं और ही चली जाएगी. तो फीट ऑन द ग्राउंड बड़ा इम्पॉर्टेंट है. सो वो रहता है और हमेशा देखते रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के भाई पहुंच रहे क्या जहाँ जाना है. तो आईज विजन पे रहती है. तो नॉर्मली जब लोगों के फीट ऑन द ग्राउंड होते हैं, जिन लोगों के who are humble, there are two main reasons behind that what we have seen. One is obviously your upbringing. The other is आपको लाइफ में फेलियर्स कहीं मिले तो अपने आप बंदा कोई भी इंडिविजुअल उस जमीन पे आ जाते हैं. देयर आर टू रीजंस. नाउ चाइल्डहुड की हम आपकी बात तो करेंगे, बट आपके बाद मैं पूछना चाहता हूँ आप थोड़ा बताओ कि कोई एक फेलियर के बारे में बताओ अपने आप. उससे ना क्या होगा कि पीपल विल ह्यूमनाइज योर जर्नी एंड दे विल आल्सो लर्न फ्रॉम इट. एनी स्मॉल फेलियर आल्सो जो आपको बहुत कुछ सिखा गया. आई थिंक फेलियर ना इट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड. It's a very strong word. So I would say for me, failures have been every time I have, let's say I've decided to shift a job or I have decided to move on without being sure कि मैंने वहाँ 100% potential achieve किया था कि नहीं. Fair enough. मैं हर उस चीज को as a failure देखती हूँ. बहुत अच्छी बात बोली. और वो मेरा learning भी होता है. Well said. Yeah. So that has made me, I would say, very humble. Very cool. So let's try to get back. You are from Calcutta? Yes. Calcutta के अंदर कहाँ से हो आप? So there's this place in South Calcutta called Dhakuria. ये Salt Lake वाली side है या opposite side है? Opposite side है. जादवपुर यूनिवर्सिटी मेरी कॉलेज उसके काफी पास है. Okay. So that's where I'm born and brought up. Like Single child. Single child. My parents had me and they are like बस done. बहुत. तो बड़े spoiled हो गए आप बचपन में? दो साइड होते हैं ना. तो जैसे देखो हाँ ये सच है कि आई गॉट ऑल द लव. वो डिसिप्लिन भी मुझे ही मिला. तो वो वहाँ कोई शेयर लेने वाला था नहीं. तो both of them came. But हाँ I had a very, I would say, I had a very blessed childhood. Very simple family, very humble family. My father, he was a school teacher. He taught Bengali and Sanskrit. The two languages I am very bad at. Bengali sounds very good though. It sounds very good, but वो I know a couple of things. I know
Amar Shunar Bangla. Then I know Ekla Cholore. And then I also know this thing called Ami Tumako Bhalobashe. These are two, three things I heard. This is it. You're done. You're sorted. That's all I know. Ekdam sorted. That's all I know. Cool. So normally we like to look at people's childhood and see certain things that have had an influence on them. तो अगर मैं आपकी childhood को देखूं, right, अगर आपसे पूछूं, एक या दो रीजन अगर आज आप एस्पिरेशनल हो, तो कुछ कोई लोग, कोई इंस्टेंसेस, कोई ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया हो, लाइक बहुत इन्फ्लुएंस किया हो. श्योर. सो देखो, मेरे लिए ना मेरे सबसे बड़े इन्फ्लुएंस पेरेंट्स थे, पर्टिकुलरली मेरी मम्मी. तो मेरे पेरेंटल साइड में बड़े आई वुड से बड़े ऑड्स है, इन द सेंस कि मेरी जो मैटरनल साइड है दैट इज कंप्लीटली फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस. So my grandfather actually fought the World War II. Wow, for? I mean, at that time it was the Indian Royal Army, and he was a very young person at that time, who ran away from his home in Assam. Wow. Because उनको आर्मी ज्वाइन करनी थी, और ये बड़े एकेडमिक्स फैमिली से आते हैं, बट ये एक जन थे पूरे फैमिली में जिनको आनी थी आर्मी जी. तो ये आ गए. और मेरी मॉम और मेरे जो मेरे मामा जी, जो दो मेरे मामा जी हैं, ये सारे यूनिट्स में बड़े हुए हैं, तो बड़े आर्मी कल्चर में, कैंट्स. सो वो एक कल्चर है. और मेरी जो फादर की फैमिली है वो पूरी की पूरी एकेडमिक्स वाली फैमिली है. And they are also first generation refugees of partition from Bangladesh to India. They're first generation. 70s में? No, they came in 47. अच्छा, बांग्लादेश के टाइम पे आ गए, क्योंकि वो जब पाकिस्तान वाली पार्टीशन. Yes. So दोनों बड़े अलग स्पेक्ट्रम में मैं. तो इनकी अरेंज मैरिज थी दोनों? हाँ जी, अरेंज मैरिज थी ऑब्वियसली. तो मेरे लाइफ में भी वो स्पेक्ट्रम्स हमेशा रहे. तो मैंने आई हैव लर्नड discipline, I have learned, ambition, focus from my mom. I've learned to never give up without a fight from my dad. So वो ना मेरे best of both worlds है. So I owe that to them. And I've always been a very introverted person, like extremely introvert, to the extent of being, I think, socially awkward. You don't look like that now. A lot of people tell me that. I'm still the same introvert person. I'm extremely introvert. Really? I think I've just learned how to navigate that. So, तो वो चीज़ बहुत बचपन से थी कि कुछ करना है. मतलब जो भी कर रहे हो, तो पेरेंट्स ने कभी ये नहीं बोला कि यही करना है, बट ये था कि कुछ करना है. You have to be independent. You have to have the power to take responsibility for your own decisions. I use two very important words here: the power and the responsibility. ऐसा नहीं है कि आपने डिसीजन ले लिया, पेरेंट्स कॉन्सिक्वेंस भोग रहे हैं. राइट. ऐसा भी नहीं है कि आपको डिसीजन लेने की क्षमता ही नहीं है. तो ये बहुत बचपन से था मेरे दिमाग में. सो आई थिंक दैट्स माय मेजर ड्राइविंग फोर्स. सो जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट करते हो, राइट, वी सी यू स्टार्ट वर्किंग इन विप्रो. यस. नाउ यू वर्किंग इन विप्रो. मेरी आपसे आई वांट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, विप्रो में बल्क में लोग उठाते हैं लोग, एंड आप भी जब गए हुए बहुत सारे लोग होंगे, एंड यू वुड बी 1 in 1,000 इन इनिशियल पार्ट ऑफ द जर्नी. जब आपने करियर स्टार्ट किया अपना विप्रो के अंदर, आपको क्या लगा था कि डिड यू फील कि यार आई विल आल्सो बी 1 in a million, और लाइक वन ऑफ दोस हु आर जस्ट इन दैट होल सर्कल ऑफ आईटी सर्विसेज, या आपको शुरू में लग गया था कि यार आई विल बी एबल टू ब्रांच आउट एंड हैव अ ब्रांड ऑफ माय ओन? ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मेरी विप्रो की एक्सपीरियंस बिल्कुल वैसी नहीं थी. मैं थोड़ा डायल बैक करके आपको बताती हूँ क्यों. तो मैंने पास आउट किया 2010 में. मैंने अपना मास्टर्स किया जादवपुर से. नाउ जादवपुर इज नोन टू बी अ इंस्टीट्यूट विच फॉस्टर्स एकेडेमिया. अच्छा. तो मतलब आपको वहाँ से मतलब हमेशा से ये इंस्पिरेशन मिलती है कि आप एकेडमिक्स पे फोकस करो, आप पढ़ाकू रहो, PhD करो, आप रिसर्च स्कॉलर बनो. एंड जादवपुर इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया फॉर रिसर्च स्कॉलर्स इन इंडिया. इकोनॉमिक्स के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स, एंड यू हैव ह्यूज UGC सपोर्ट फॉर जादवपुर. तो हमारे वहाँ कैंपसिंग बहुत कम होती थी. मतलब आज तो फिर भी होती है. व्हेन आई लुक एट नाउ द पास, हाँ, कैंपस प्लेसमेंट्स इंजीनियरिंग में अगर मान लो आपके 10 कंपनीज आ रही हैं, तो पूरे आर्ट्स डिपार्टमेंट में एक आएगी. वाओ. ये रेशियो था हमारा. क्रेजी. तो इन माय ईयर वी हैड 2 ऑप्शंस. देयर वाज HP
एंड देयर वाज विप्रो, यही 2 आने थे अच्छा और कोई आया नहीं। और विप्रो ने हमारे पूरे 40 के बैच में 2 जन को सेलेक्ट किया। अच्छा, तो बहुत मतलब तो वो बड़ी बात थी। भीड़ वाली बात तो हुई नहीं मेरे हाँ। साथ। और जब मैं विप्रो में गई, उसका भी कहाँ बड़ा पे थी ट्रेनिंग आपकी, स्टार्टिंग की ट्रेनिंग आपकी? ट्रेनिंग क्या, हमें तो सीधा जॉब पे डाल दिया। सीधा? हाँ, सो आई विल टेल यू, विप्रो की भी मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। हम 2 थे मेरे कॉलेज से, और विप्रो सिर्फ टियर 1 से उठाती थी उस तो हाँ, तो क्योंकि ये सिर्फ एनालिटिक्स के लिए उठा रहे हो, ये आप इंजीनियरिंग के लिए नहीं हायर कर रहे हो। अच्छा, तो आपकी पहली जॉब ही एनालिटिक्स में लगी थी? मैंने यू आर द फर्स्ट लीडर Yeah. जिनकी पहली, जिनको मैं लाइक आई एम टॉकिंग टू देम, हाँ, जिनकी पहली जॉब एनालिटिक्स में लगी थी। one of the major reasons Probably to do with your age also. exactly To do with the your most of the leaders you've spoken to Yeah. are stalwarts who brought analytics in India. Yeah. राइट, तो मेरी तो पहली जॉब ये थी। इन्होंने उस टाइम पे ISI से भी कुछ 4-5 उठाए थे और प्रेसिडेंसी से भी कुछ 2-3 आए थे, तो हम लोगों का ना एक ग्रुप बन गया था। हाँ। तो मुझे याद है कि हमें, एंड आई स्टिल रिमेंबर द डेट्स, 26th of July 2010, दैट्स द डे आई स्टार्टेड माय करियर। हमें बोला गया था सुबह 8 बजे की रिपोर्टिंग टाइम है, विप्रो के सॉल्ट लेक कैंपस में आ जाना। मेरे पेरेंट्स मुझे, वो जैसे स्कूल में दाखिला करने जाते ना बच्चे का, पेरेंट्स छोड़ने गए थे? पेरेंट्स छोड़ने गए थे, इतने खुश थे वाओ कि यार। कितनी सैलरी थी बोली? 25,000 30,000? नहीं पता थी, वो ज्यादा होगी, 40-45 के आसपास होगी, ठीक है। अच्छी थी मतलब उस टाइम? हाँ, उस टाइम पे काफी अच्छी थी यार। तो पेरेंट्स गए छोड़ने, हमें देखा बड़ा लंबा सा लाइन है। मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है इधर, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि हमारे साथ इंजीनियरिंग की भी उसी दिन ज्वाइनिंग है। तो हम ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा बाहर लाइन में खड़े रहे, और वो 1.5-2 घंटे में जो हमारी एनालिटिक्स वाली ग्रुप है उसकी जो बॉन्डिंग बन गई वो उधर ही बनी। वाओ, उस 1.5 घंटे में वहाँ बॉन्डिंग। तो फिर हम अंदर गए, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये था कि ये लोग जो बिठा रहे थे ना, हमें एक बड़ा सा ऑडिटोरियम था, तो पहले ही बोल दिया था कि जिनको हम एनालिटिक्स के लिए हायर करें वो सामने वाले रो पे आके बैठो, मेन लोग, अच्छे इज्जत मिली। हाँ, और बाकी लोग पीछे बैठो। तो तब बड़ा लगा कि भाई कुछ सही कर रहे हैं, कुछ तो सही कर रहे हैं। तो मुझे वो भीड़ वाली फीलिंग आई नहीं, और हमें फिर सीधा उठा के दे दिया प्रोजेक्ट। और ये इंटरनेशनल क्लाइंट का था? हाँ, ये यूएस की एक रिटेलर हुआ करती थी, सीयर्स नाम की, बंद हो गई बेचारी। हाँ जी। We have no role to play. What if? I know my models. Right. तो फिर वहाँ पे डाल दिया। Okay. और वहाँ 3:30। तो नाइट शिफ्ट में काम होता था? नहीं, वो नॉर्मल था, मतलब जाते थे हम लोग 12-12:30 बजे ऑफिस जाते थे। 12-12:30? हाँ, क्योंकि वो यूएस के साथ ओवरलैप चाहिए होती थी। और 9-9:30 मैंने वहाँ पेल के लेट नाइट काम किया है। अच्छा, मुझे बड़ा मजा। You must be very young at that time. हाँ, I was what 23-24। Got it. हाँ, तो मैंने तो बड़े पेल के, मतलब रात के 3-3, 4-4 बजे तक भी किए। करते थे लोग ऐसा काम? हाँ, कुछ तो थे हम जैसे, और वो बहुत मजा भी आता था। और वो यूएस में आप सीख रहे हो कैसे क्लाइंट को हैंडल करना है। आपके जो यूएस में काउंटर पार्ट बैठे हैं वो, मतलब ही इज लाइक अ सीनियर डायरेक्टर काइंड ऑफ अ पर्सन, राइट। आप उसके साथ डेली बात कर रहे हो, उनसे सीख रहे हो। पर मेरा क्वेश्चन है आपसे, राइट, अगर आपकी जर्नी को हम देखें, विप्रो इज द फर्स्ट एंड द ओनली सर्विसेज कंपनी यू वर्क इन। नाउ दैट इज समथिंग व्हिच आई डोंट यूजुअली सी, एंड द रीजन इज दैट मोस्ट ऑफ द लीडर्स आई टॉक टू, once they are in that network, in that rut or whatever you call it, they want to grow there, because थोड़ा P&L driven रोल भी होता है, फास्टर रोल होता है, नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो मुझे आपका कुछ एक्सपीरियंस में कमी थी या फिर कुछ आपको और चाहिए था? Why have you never worked in IT services? नहीं, आई डोंट थिंक आई वाज वेरी स्पेसिफिक कि मुझे IT सर्विसेज में नहीं काम करना है, बट विप्रो में अराउंड आई हैव स्पेंट 3.5 years, राइट, इट वाज माय फर्स्ट जॉब। And to be honest, I don't think I have learned anywhere as much as I've learned in Wipro. अच्छा। और उसका एक major reason ये है कि I came as a blank slate ना, I came as a sponge. जो सिखा रहे हो मैं सीख रही हूँ। Right. और मैं आती हूँ इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से, एक लाइन कोडिंग की नहीं आती थी, मुझे पता भी नहीं है कोडिंग होता क्या था, मुझे थोड़ी किसी ने बताया था क्या होता है। मैंने एक्सेल लाइफ में पहली बार देखा है विप्रो में आके। कॉलेज में? अच्छा, तो क्या है? कॉलेज में हमें पेपर्स दिया जाता था कि आप नोबेल लॉरिएट के पेपर्स पढ़िए। क्रेजी। तो वो सीखा मैंने वहाँ पे। तो आई लर्नड लाइक एनीथिंग। तो मेरे लिए तो व्हेन आई लुक बैक आई एम लाइक भाई वहीं से शुरू हुई है। एंड देन आई वांटेड टू मूव आउट ऑफ कैलकाटा, क्योंकि ये मुझे बड़ा क्लियरली दिख रहा था कि कैलकाटा से मेरे एम्बिशंस नहीं। वाज इट एम्बिशंस या फिर आपको घर पर ही रहना था? नहीं, ambition, you have no idea, I am still a mess every time my mom goes back home. I am that woman who's howling in the airport. अच्छा। हाँ, अच्छा, वैसी बात नहीं थी? बिल्कुल नहीं था। मुझे लगा आपको थोड़ा घूमना है तो आपने I am a homebody. Really? People have to
throw me out of house. तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि जो शुरू के करियर के पास होते हैं, लोग पार्टी वार्टी भी बहुत करते हैं, कुछ नहीं किया आपने? I'm not a party person. अब तो करते हो क्या? I go to parties. Okay. My go-to drink, and I'm giving away an secret. Yeah. My go-to drink is a gin and tonic. I don't know why I could just guess it. It was very obvious. Because you can replace gin with water, and it looks like you're drinking. But you still have gin only. Not always. No? I have my drinks. Interesting. I have Very my interesting. drinks. Cool. So Wipro में आप थे. Now you get into HSBC. HSBC कहाँ पे था? गुड़गांव. नहीं, Bangalore. Oh. So that's how you come to That's how I come to Bangalore. Bellandur office. Bellandur office, वो घर पेट्रोल के पंप पास के ही, बाजू हाँ, में जो हाँ। हुआ करता था, that was my first stint with finance. तो मुझे वो था कि इकोनॉमिक्स पढ़ा है, मुझे फाइनेंशियल सर्विसेज में जाना है, फाइनेंस बैंकिंग में जाना है, फाइनेंस. और HSBC बोलने में बड़ा cool लगता है. वो अगर HSBC है ना. It sounds अच्छा, very और cool. HSBC में मेरा पता है क्या हुआ, दे केप्ट टेलिंग मी कि आप कैलकाटा में जॉब क्यों नहीं ले रहे हो, HSBC इज अ ह्यूज कैंपस इन कैलकाटा. तो बोले वहाँ ले लो. एंड मैं ऑलमोस्ट झगड़ पड़ी हायरिंग मैनेजर से कि नहीं, मुझे बैंगलोर ही आना है, देना है तो बैंगलोर में ही दो मुझे. सो देन आई गॉट द HSBC बैंगलोर जॉब. लाइफ में पहली बार आई एम स्पेंडिंग टाइम अवे फ्रॉम आप पेरेंट्स. अकेले आई थी? नहीं, me and my husband. And you were married by that time. So I got married in 2012 November, and we left Calcutta in 2013 June. And where was he working at that time? So he was with Wipro. You both were in Wipro. Yes. Oh. So he was in Wipro, and Wipro was kind enough to transfer him to Bangalore. अच्छा, उनको नहीं शिफ्ट करना था बैंगलोर, आपके लिए ये वो. हाँ. तो because I was the one who was cribbing and crying. Got तो his first job was with Infosys. Got it. तो वो मैसूर कैंपस में था, और उसके बाद he came to Bangalore. He was in Bangalore for 6 months. Then I started crying and cribbing कि कैलकाटा आ जा. हाँ. ये लॉन्ग डिस्टेंस वजह से मेरे से नहीं हाँ हाँ. कैलकाटा. एंड ही इज Where did you meet him by the way? स्कूल. आई मेट हिम व्हेन आई वाज इन क्लास 11. Crazy. एंड वी नेवर डेटेड इन स्कूल. वी वर You were like friend zone. यार वो उसका वर्जन है, एंड आई डोंट नो आपको उसका वर्जन कैसे पता, बट ऐसा कुछ नहीं था. वी वर जस्ट ग्रेट फ्रेंड्स. Okay. सो उस टाइम पे आई वाज क्रिबिंग 2011 के आसपास के इन्फोसिस में. एज इट इज यू आर आल्सो मिजरेबल, तुझे भी कुछ खास मजा नहीं आ रहा है. एंड ही वाज लाइक तू करती क्या एनालिटिक्स में. मुझे एनालिटिक्स का थोड़ा. क्या कर रहे थे डेवलपर थे उस टाइम पे? He was into a development role, but it was very it was with Goldman Sachs. और वो काफी उसमें ना he was into those legal processes. तो काफी उसमें उसको SQL वगैरह बहुत तगड़ा आता था. तो when he interviewed for Wipro, तो it was like a cakewalk. हो गया, आ गया. तो फिर यहाँ पहुंच गए तो घर वाले शुरू शादी करो. हो गया ना, अब तुम लोग करो शादी. हमने भी बोल दिया ठीक है कर लेते हैं शादी, क्या चाहते हैं, करना तो यही है तो कर लो. तो कर ली शादी. अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि कैलकाटा तो रहना नहीं है, तो निकलना है. तो आप बैंगलोर आते हो. देन आई कैसा था बैंगलोर का पहले 1-2 महीने? बेकार. आई हेटेड इट बिकॉज़ आई वाज आउट ऑफ होम. Out of home, language would have also been a challenge. Language is still a challenge. Still थोड़ी English better हो गई है यहाँ पे लोगों की. हाँ हाँ. And I also understand कन्नड़ा अगर कोई थोड़ा softly बोल दे तो, मतलब वो बहुत जल्दी में बोल. आप बोल सकते हो कन्नड़ा? I get by गोतिल्ला. What does that mean? I have no clue. Gotilla means I don't know. Oh, perfect. Gotilla. So I just say Kannada Gotilla, which means I don't know Kannada. I got it. So in HSBC, you're there for like 2 years, 1.5, 2 years? 2 years. Yeah. Now explain to us in those 2 years, top 3 things you learned from HSBC or from your job, because HSBC's culture, HSBC's processes, practices are phenomenal. And the brand is very strong. And HSBC has always been this, has always had a very strong brand with respect to HNIs. HSBC always and Hong Kong based, काफी इनके Chinese clientele बहुत strong है इनकी. तो कैसा था experience? बहुत अच्छा था. And this is one thing I keep telling everybody. I worked in so many companies. I have never ever seen a company more people oriented. Like HSBC? Yes. कैसे? Each and every policy is made keeping in mind the most disadvantaged team member in your team. Seriously? Yes. At a micro level? At a micro level. Wow. I loved the company. Fantastic. And I think the empathy that I saw in the company is something I really, really value. And things I picked up. Things I've picked up.
और HSBC was my first foray into banking. मैंने इसके पहले बैंकिंग नहीं की थी, मैंने पूरा का पूरा रिटेल में काम किया था, तो वो बड़ा मज़ा आया मुझे वो पूरा सीखने को मिला. एंड आई वाज वर्किंग विद US मार्केट, US कार्ड्स, डिपॉजिट और रिटेल बैंक. और मेरे US पार्टनर वो बहुत ही अच्छे थे. आई थिंक ही टुक मी अंडर हिज विंग्स. हिज नेम इज केनेथ लेविन. Still connected to him? I'm still connected to him. And Ken took me under his wings. And Ken was like कि भाई ये लड़की को थोड़ा ग्रूम करते, इसको थोड़ा सिखाते हैं चीज़ें. तो उन्होंने मुझे जो अपॉर्चुनिटीज दी कि आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वो आप इंडिपेंडेंटली करो. एंड आई एम जस्ट अ यंग एनालिस्ट देयर, राइट. आप इंडिपेंडेंटली करो, आप प्रेजेंट करो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला आपके काम पे. तो ये जो उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट दिखाया था, कैन ब्रॉट दैट कॉन्फिडेंस कि अच्छा हाँ तो हो रहा है, सही हो रहा है. बट जब आप अर्ली पार्ट ऑफ योर करियर में होते हो इन अ ऑर्गेनाइजेशन लाइक HSB, स्पेशली फ्रॉम देयर ऑफिस इन इंडिया, हाउ मच आर यू इंटरेक्टिंग विद द पीपल अब्रॉड? अर्ली पार्ट ऑफ योर करियर, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट. आई डोंट नो, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. नहीं, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट राघव. और ये पता है आपको, ये ना शुरू में होता नहीं है, बट ये बहुत पीपल सेंट्रिक चीज है. Ken saw something and he gave that opportunity. Now, अब I was very lucky that I had partners who valued this. और ये सिर्फ उसने मेरे साथ नहीं किया. There were others in my team also whom he gave that opportunity. And actually हमारे टीम से बहुत लोग हैं जो HSBC US या कनाडा शिफ्ट हुए. अच्छा. हाँ. I'm still in touch with them and they're still with HSBC. Wow. आपके पास भी ऑप्शन था? मेरे पास ऑप्शन था. But you know, these things work out if you are willing to give a very long time to the company. And मैं थोड़ा जल्दी में थी. आपको क्या जल्दी थी? मुझे और सीखना था. मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गई HSBC में. Then you go to City. Then I go to City. City के ऑपोजिट साइड पे ना ऑफिस? नहीं, City was in UB City. At that time. हाँ, UB City वाली ऑफिस थी हमारी. और सिटी में मैंने शुरू का रोल जो किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. वो हमारे मेक्सिको बिजनेस का था, बैनमेक्स. और वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रोल था. क्या रोल था? वो था वैसे मार्केटिंग और कस्टमर एनालिटिक्स पे ही था. बैनमेक्स की पूरी बिजनेस के लिए ही करते थे हम लोग. इट यूज्ड टू बी मोर ऑफ एडवांस एनालिटिक्स मॉडलिंग. बट जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा था कि मेक्सिको हैड अ टीम ऑफ देयर ओन. अच्छा. और जो इंडिया वाली टीम थी उसका जॉब था टू बेसिकली शो योर ओन एक्सपर्टीज, so that you are able to deliver the right value, because somewhere the business felt that India has more chops. तो वो थोड़ा मुझे conflict management भी सीखने को मिला. But बड़ी interestingly दोस्ती भी बड़ी बन गई. In city with the Mexico folks. तो आप मेक्सिको विजिट किया आपने कभी? मैंने मेक्सिको विजिट नहीं किया, बट बात तो हमेशा होती रहती थी. तो I'm actually in touch with. क्या लोग कहते हैं कि I've been to Mexico also, तो कल्चर्स में बहुत सिमिलैरिटीज हैं. बहुत. फैमिली वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है इन मेक्सिको लाइक इंडिया. तो कुछ आप बताओ मेक्सिको के बारे में, जो आपने उन कल्चर, उनके लोगों से बात करके सीखा, समझा. मुझे ना बड़ा अच्छा लगता था that they had a very good way of drawing boundaries. जैसे अगर उसका अभी लंच आ रहा है तो वो कुछ भी कर लो, वो तुमसे उस टाइम पे बात नहीं करेगा. And in a way, it's a very good thing because it forced me to come back home. Right? तो मैं रात के 11 बजे क्यों बैठी हूँ ऑफिस में? मुझे भी तो होना चाहिए ना. Fair enough. And I remember there used to be one lady there. She was very senior. And I remember her telling me one day with her very heavy Spanish accented English, you should have a life. Go home. And coming from someone so senior who's actually been so successful, you realize कि हाँ शायद मेरा पर्सपेक्टिव भी थोड़ा मॉडिफाई होने की जरूरत है. तो वो स्टिंट 1.5 साल का था सिटी में मेक्सिको का. फिर लगा के कार्ड्स में कुछ बढ़िया चल रहा है, नॉर्थ अमेरिका कार्ड्स में. कैबेज तो नहीं, सिटी में ही. तो एक फ्लोर नीचे आ गई. अच्छा. 4th से 3rd आ गई. और 3rd में आके तब बढ़िया सा एक चीज किया. कौन लीड कर रहा था उस टाइम पे सिटी में एनालिटिक्स? एनालिटिक्स में उस टाइम पे थे RB आ रहे थे. He was just in his way in. Yeah. I don't remember exactly who was there before him. Cards and North America was being led by Kaushik Kadilal. Okay. But RB was there at that time? No. RB and I have had a very interesting history. अच्छा. Every time RB comes to a company, I leave. Really? Why? ऐसा हुआ है. जब वो HSBC आए मैं निकली, RB City आए मैं निकली. तो every time like RB and I meet. जी. And I'll ask him next time when I meet. Like sir वो revolving door वाला situation हो रहा है अभी. But people like RB
विद कंपनी लाइक HSBC सिटी, यहाँ पे बहुत टॉप के लीडर्स रहे हैं. आपको एक या दो लीडर्स जिन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया हो, if you want to name from these two companies? I think a lot of the leaders were actually, I've had some influence from everyone in some way or the other. It's difficult to take one or two names. Sure. But I've had influences from everyone. Like I'll tell you, Kaushik Kadilal, who was heading the cards from the analytics A&IM standpoint. Kaushik is the most articulate person I've met in my life. उस लेवल ऑफ लिडरशिप में आपके लिए जूम इन जूम आउट करना बहुत जरूरी होता है. आप किस इन्फॉर्मेशन में जूम इन करोगे, कहाँ जूम आउट करोगे, और उसको बड़ी क्विकली पिक करके आप कैसे उस मैसेज को ट्रांसलेट करते हो, इज समथिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम कौशिक एंड आई रियली एडमायर हिम फॉर दैट. वो मैंने बहुत सीखा है उनसे. देन यू हैव पीपल लाइक आबिर मुखर्जी. Abir and I go back to my. He's still in city, na? He's still in city. Yeah. Yes. So उसका जो people focus है ना in his leadership style, I want to imbibe even 5% of that. Nice. I've learnt that a lot from him. So I've met these really good people, and they've been very, very kind to me. So I think I've had these influences all through my career. तो आप सिटी में 3 साल रहे? 3.5 साल. 3.5 साल. लंबा रहे मतलब. अच्छा रहे. Now सिटी के बाद you get into fintech industry. हाँ. तो ये कैसे हुआ transition? यार इसके बाद सेरेंडिपिटी शुरू हुई लाइफ में. तो सिटी में जब मैं सिटी ज्वाइन कर रही थी बैनोमिक्स में, the person who was leading Banamex was Ratnakar Pandey, or RP, as the entire analytics industry knows him as. RP कैबेज मूव कर गए थे और काफ़ी दिन हो गया था RP कैबेज मूव कर गए थे. एंड आई हैव ऑलवेज बीन इन टच. RP इज सो सीनियर दैट मतलब, एंड RP इज अगेन वन ऑफ दोज पीपल. I'm extremely blessed that there are few people in my life I can message and say कि advice चाहिए. Yeah, I want to talk to you. So RP is definitely one of. मैंने RP को एक दिन ऐसे ही मैसेज किया कि RP ये सिटी में तो ठीक है चल रहा है, बट मुझे ना अभी फिर से वो फोमो हो रहा है कि मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ. तो कैसे नाउ एज एन एम्प्लॉय कैसे पता लगता है आपको, या आपके लिए क्या क्यूज होते हैं कि यार मेरे को अब मैं जो मतलब आई एम स्टैग्नेंट. हाउ डज अ एम्प्लॉय, लेट्स से एन एम्प्लॉय इज वाचिंग दिस, एनी एम्प्लॉय, हाउ वुड दे नो, और हाउ डिड यू नो इन योर जॉब्स कि अब मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, ग्रोथ नहीं है, मैं सीख नहीं रही हूँ, कैसे कुछ क्यूज बताओ. देखो ये ना थोड़े पर्सनल भी होते हैं. अब आई एम अ वेरी इम्पेशेंट पर्सन, तो मे बी मुझे ज्यादा जल्दी हो रही थी, तो मुझे वो वाला फीलिंग आता है कि इफ आई टर्न अप टू वर्क एवरी डे एंड आई हैव अ सेट फ्रेमवर्क इन माइंड कि आज दिन ऐसे जाएगा, और दिन एग्जैक्टली वैसे जा रहा है, एंड डे आफ्टर डे ऐसे जा रहा है, और कुछ आ नहीं रहा है नया, और यहाँ से मुझे ये भी नहीं दिख रहा है कि रास्ता कहीं और मुड़ेगा, रास्ता यही डायरेक्शन में जा रहा है, तो तब मुझे बड़ा स्टैग्नेशन सा फीलिंग आता है. सो वो वाली फीलिंग मुझे तब सिटी में आने लग गई. सो मैंने ऐसे ही एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है कि व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब, व्हेन यू आर बिल्डिंग अ करियर, 12 महीने हैं मान लो एक साल में, तो सब लोगों को इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस व्हेन वी आर डूइंग एनीथिंग, वो 2-3 महीने लगता है साल के अंदर कि ये क्या कर रहे हैं, बेटर कर सकते हैं, कुछ नया करना चाहिए. बट जो लोग वहाँ पे, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड मार्शमैलो थ्योरी, मतलब इट्स अबाउट पेशेंस. राइट. सो आपको कभी ऐसा लगा, जनरली आई एम आस्किंग, कि हो सकता है आपने जल्दी सोच लिया? हाँ बिल्कुल लगा है, बिल्कुल लगा है, which is what I told you, right? When you spoke about my mistakes, obviously I have looked back and I have looked at decisions and I have said कि नहीं यहाँ थोड़ा शायद दोनों साइड से, हाँ मैंने थोड़ी शायद जल्दी मचा दी थी, but maybe I'm just blessed कि none of the decisions I took I regret. I don't regret the decisions I took. मतलब I can, to be very frank, like today if I look back, I can see कि हाँ मैं उस टाइम पे सिटी में 6 महीना और रुक गई होती तो स्टोरी बदलने वाली थी, और स्टोरी बदल भी जाती, और मुझे इंडिकेशंस आने लग गए थे ग्रेजुअली. बट मैंने ये जंप मारा, बट आई डोंट रिग्रेट द जंप. In fact, Cabbage is the most beautiful chapter of Cabbage, Kaushik was leading it. KD was leading it. So Kaushik के साथ we did a very interesting podcast, and he was telling me कि वो Cabbage की journey कैसी थी, right? Yes. I don't know if you were there at the time when it shut. You were there at that time? Yes. What a journey that was, right? आप थोड़ा बताओ, बिकॉज जो कल्चर मुझे समझ आया, और ये तो पूरा स्टार्टअप, फुल हार्डकोर स्टार्टअप,
एंड लोग इतने वेस्टेड, मतलब ही वाज टेलिंग मी कि ये कोविड के दौरान की बात है, especially if I'm not wrong. I'm not. Yeah, so 30th March 2020 is when we folded off our India office. Yeah. It was just when COVID had hit. Yeah. Just when lockdown has hit. Yeah, and he was like, thankfully, all of our people got great jobs, better than before. In a month. In a month. But it was कि कैबेज वाले को पड़ी थी. हाँ. Like KD and all of those people really cared Yes. कि सबको मिल जाए. तो थोड़ा आप कैबेज के एक्सपीरियंस में बताओ, और कुछ एक या दो इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स, कुछ मजे की चीजें क्या किया आप लोगों ने वहाँ पे? पक्का. तो मैं कैबेज का, तो मैंने आरपी को जब फोन लगाया तो मैंने उनको ऐसे ही, मेरे दिमाग में कुछ था नहीं, तो मैंने उनको बोला कि सर वो ना फिर से वो वाला मेरा सिचुएशन है, थोड़ा फोमो टाइप का हो रहा है, क्या करूं, कुछ करना है सर. सर तू कल ऑफिस आ जा. मैंने कहा सर कौन सा ऑफिस? इंदिरा नगर वाला था. अरे रुको, मुझे पता ही नहीं था ना वो कहाँ है. तो तू कैबेज ऑफिस जानती है ना? मैंने कहा नहीं पता. कहा कि वो देख वहाँ लीला पैलेस. मैंने कहा आपके होटल में ऑफिस है क्या? मैंने नहीं, होटल के बाजू में है, तू आ जा. अच्छा ठीक है सर, आ जाती हूँ. सर को बोलना चाहिए था ना कि इंटरव्यू है. अच्छा इंटरव्यू था. मैं तो चली गई. मुझे पता था मैं आरपी से मिलने जा रही हूँ. उन्होंने इंटरव्यू लिया? नहीं, आरपी ने नहीं लिया. अच्छा. 2 यूएस से आए हुए थे, 2 रिस्क के डायरेक्टर्स, और मैं चली गई इंटरव्यू देने. एंड दैट वाज द बेस्ट इंटरव्यू ऑफ माय लाइफ. चिल कॉन्वर्सेशंस विद पीपल हु आर डैम गुड एट देयर क्राफ्ट, who are so good at their craft that I learnt in that interview, rather than me talking anything about it. I remember the 2 people, Yakov Ehrlichman, who now leads the credit for Stripe, lending business for Stripe. Wow. And that's huge. Yes. Huge. And Arvind is with Zip, my previous company, and he leads credit there, credit risk there. You both went to Zip together? Yeah, Arvind. I could. And I was like, ये लोग हैं क्या, मतलब यहाँ पे ऐसा होता है. एंड आप ना वो एक सिटी का जो ऑफिस का स्ट्रक्चर भी है आउटलुक, और बाय द टाइम हम नए ऑफिस में हिब्बाल में मूव कर गए थे, इट वाज अ लवली ऑफिस एंड ऑल दैट. ये तो बड़ा फन दिखने वाला ऑफिस था. चिल ऑफिस, ये ऑफिस में हैमॉक वेमॉक लगे हुए हैं, ये बहुत बढ़िया है, मुझे बड़ा मजा आया. मैंने कहा बढ़िया है. अच्छा मैं घर पहुंची, साथ साथ आरपी का कॉल आ गया कि डन है, तुम 1-2 और बात कर लो लोगों से. मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या, कर लो बात तो कर लेते. एंड देन आई मेट वन पर्सन हु आई वुड से हैज हैड अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन मी, बोथ एज अ पर्सन एंड बोथ एज अ लीडर, एंड हिज नेम इज मिस्टर कौस्तव दास. Mr. Kaustav Das was he was a CRO at Cabbage. Yeah. And so his number is also saved in my phone as boss. Oh. He's the only one I call as boss. And boss called me, and it was supposed to be an interview, and boss basically उसी interview में ही he took me under his wings. कि इस लड़की का तो कुछ करना पड़ेगा, इसका तो मतलब इसकी नैया पार लगानी है अभी हमको. And the things I learned from KD, from Kaustav was unbelievable. तो मैंने ले लिया कैबेज का रोल, मुझे बड़ा मजा आया. अच्छा मुझे रोल भी ऐसा मिला कैबेज का, तो देयर लेंडिंग बिजनेस वाज वेरी सक्सेसफुल बाय दैट टाइम. वी वर सीरीज एफ जब मैंने ज्वाइन किया, एंड लाइन ऑफ क्रेडिट बिजनेस वाज गोइंग वेरी वेल. तो अब कैबेज को नई चीजें करनी थी, कॉर्पोरेट कार्ड लॉन्च करना था, मर्चेंट कैश एडवांस बिजनेस करना था, कैश फ्लो बिजनेस करना था. तो रेजर पे की स्टोरी लग रही है मेरे को. हाँ, और फिर एंटरप्राइज थी जैसे अलीबाबा, उनके साथ पार्टनरशिप्स करनी थी. तो कौस्तव ने मुझे हायर किया और बोला कि ये टीम बना. एंड कौस्तव ने एक्चुअली मुझे बोला कि तुमने इसके पहले रिस्क में कभी काम नहीं किया, कर लोगी? मैंने कहा हाँ कर लूंगी. कर लेंगे, कोई नहीं, चलो ये भी कर लेंगे. बट आई हैड कौस्तव सपोर्ट. तो बनाया टीम बैठ के, हायर किया, सब किया, और वो 1.5 years is the best journey of my life. बेस्ट, जो मज़ा आया. और वो मज़ा इसलिए आया क्योंकि वहाँ मैंने सीखा कि आप एफर्ट कैसे वेस्ट नहीं करो. मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिस्टिंक्शन बताती हूँ. आप जब जीसीसीज में काम करते हो, एक बहुत स्टैंडर्ड मॉडल होती है कि आप जो इंडिया में काम कर रहे हो ना, आपकी काउंटर पार्ट टीम यूएस में बैठती है. शैडो टीम होते हो आप शैडो टीम होते हो, राइट? और वो जो काउंटर पार्ट टीम होती है ना, वो जाती है बिजनेस से बात करने, ये करने. हमारे पास कैबेज में वो सब लग्जरी नहीं थी, आप ही हो. तो आई रिमेम्बर वॉकिंग इनटू अ मीटिंग विद द सीईओ. अच्छा. एंड प्रेजेंटिंग नंबर्स, एंड दैट इज माय सेकंड मंथ इन ऑफिस.
So second month in office, Rob Frohen and Catherine Petrelli are sitting there, and I'm telling them, multi-billion-dollar organization. हाँ, and I'm telling them, Rob ये ऐसा है, ये वैसा है, and Kostov मुझे वहाँ से बोल रहे हैं कि तुम्हारे आइडियाज भी बताओ जो तुमने मुझे बताए थे, बताओ इतना क्या शर्मा रही हो। तो वो मुझे सीखने को मिला। तो मैंने जो This was in Atlanta or this was online? This was in India. They had come down to India. Okay. We did the board meeting in India. Damn. And I learned so much. मुझे ये वाला मुझे लगा कि अब ये जो फॉर्मूला है ये मेरे साथ और नहीं ये मेरे साथ फिट हो रहा है क्योंकि ये शैडो वाला मॉडल मुझे ठीक है कर लेते थे उतना मजा नहीं आता था यहाँ पे you have a skin in the game. Like you are a decision maker. You're a decision maker. Like I remember there was an Armenian fraud ring which had happened around 2019 में और मुझे सुबह के 4:30 या 5 बजे कौस्तव का कॉल आता है कि अलीबाबा पोर्टफोलियो में इतना लॉस हुआ है अभी के अभी देखो हुआ क्या है और वो अगला जो 48 आवर्स निकला ना हमारा निकला बट वो जो स्किन इन द गेम वाली फीलिंग आई ना यू टेस्टेड ब्लड वो मुझे बड़ा अच्छा। तो कैसा फील हुआ आपको जब कंपनी ने वाइंड अप किया ऑपरेशंस? आई लॉस्ट फैमिली, दैट्स हाउ आई फेल्ट लाइक। और मेरे साथ ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि मेरी कैबेज की जर्नी देख के बड़ा इंस्पायर्ड होके मेरा हस्बैंड भी कैबेज ज्वाइन कर चुका था। ओह डैम। सो ये एक साथ आप दोनों कैबेज में? यस। बड़ी डेंजरस सोच है। कोविड हुआ मतलब हाँ, you're right. No, you're right. Just think. Yes. You had your child by then? No, I don't have a child yet. You don't have a child. My apologies. So still, मतलब you have your things, right? And both of you are together. Yes. In one company. COVID हुआ है. Yeah. And वो अच्छा खासा 5 साल टारगेट में था। My God. वो टारगेट में बहुत खुश था। Shit. और उसको बड़ा फोमो होने लग गया मेरा कैबेज देख के और मैंने भी उसका फोमो बड़ा इनकरेज किया कि भाई आजा देख क्योंकि कैबेज को भी उस टाइम पे दे वर ट्राइंग टू बिल्ड मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज। डेटा साइंस टीम थी बट दे नीडेड अ full stack machine learning engineer and my husband fitted that bill perfectly. So I introduced my husband and KD and then after that the next I know is he has an offer letter. He was in your team only? नहीं वो अलग था। अच्छा। So ये हुआ हम दोनों साथ में बट कैबेज टुक वेरी गुड केयर ऑफ अस। तो आपकी कभी एक दिन तो थोड़ी सी मतलब टेंशन तो ही होगी? बहुत हुई है और स्पेशली वो पैंडेमिक था। हाँ पैंडेमिक पहली फर्स्ट टाइम ऑफ पैंडेमिक तो किसी को पता नहीं था ना। दिस इज द ट्रू अननोन सिचुएशन दैट नोबडी नोज अब आगे होगा क्या राइट। तो नोबडी इज एवरीबडी इज प्लेइंग इट सुपर सेफ but interestingly he landed his next job in 20 days. 30 days. I landed mine in a month's time. Wow. And Cabbage had taken very good care of us in every which way possible. And what struck with me in Cabbage is how much we worked to get everybody placed. हमारा वो हुआ इनिशियल शॉक सबका उतरा। पहला काम जो हमने किया कि एक गूगल शीट फ्लोट करो उस गूगल शीट में सबके नाम लिखो सबके बेसिक्स लिखो उसमें गूगल ड्राइव के फोल्डर्स के लोकेशन दो जहाँ पे रेज्यूमेज हैं और फिर सब अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में लग गए। एंड राघव माय बिगेस्ट सैटिस्फैक्शन वाज एवरी वन ऑफ माय टीम मेंबर्स गॉट प्लेस्ड बिफोर आई डिड। अमेजिंग। व्हिच टू मी वाज it's a great deal. Good feeling. Right? It's a huge feeling. Yeah. So Cabbage groomed me. I am to a large extent my leadership style is influenced by Cabbage. And then you get into Zest. Zip. Zip. Yes. What does Zip do? Zip is a buy now pay later. Okay. How are these buy now pay laters doing generally now? ये मॉडल में प्रॉब्लम आ रहा है ना काफी generally, not this company generally. नहीं you are right because देखो आप अगर buy now pay later की हिस्ट्री देखो NPA बहुत हाई है ना इसमें? NPA हाई है। अब buy now pay later हम एक्चुअली इसको बड़ा रजिस्टर नहीं करते हैं। इंडिया एक्चुअली pioneered buy now pay later. If you look at Bajaj Finance. चेतक। बजाज फाइनेंस क्या है? बजाज फाइनेंस तो बाय नाउ पे लेटर है। आप एक क्रोमा के दुकान में जाते हो फ्रिज पसंद करते हो जब आप फ्रिज का बिल करने जाते हो एक बजाज फाइनेंस वाला आदमी आता है करके आपको बोलता है कि सर आप इसमें ना आप लोन ले लो हम आपको 0% पे दे देंगे। यही तो होती है बाय नाउ पे लेटर। तो इंडिया एक्चुअली पायोनियर्ड बाय नाउ पे लेटर बट वी नेवर मार्केटेड बाय नाउ पे लेटर। ऑस्ट्रेलिया मार्केटेड इट वेरी। ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था? Yes, so Zip is an Australian company. Then you have Affirm. Then you have Afterpay.
तो Australian market for buy now pay later was a very Affirm and all, aren't they US based companies? they're all US based, but they have huge markets in Australia because Australia was a very popular market for buy now pay later. मतलब these are credit focused markets mainly. And this is so buy now pay later is like मैं आपसे discretionary purchase करवा रही हूँ. Subvention कहते हैं ना, it's a subvention kind of scheme. In a way, but then you know the ticket sizes are small. Very small. The ticket sizes are very small. $200-300 की बात कर रहे हैं हम आपसे. और उसमें क्या होता है, हम आपको डिस्क्रिशनरी स्पेंड करने का पावर दे रहे हैं विथ यू नो द फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑफ buy नॉट now हैविंग और द pay कैश later and zero cost EMI में फर्क क्या है? So zero cost EMIs are usually offered by the cards, like the credit card companies और आजकल तो डेबिट कार्ड्स में भी मिलने लग गए हैं. एंड टेक्निकली आपका ऑब्जेक्टिव सिमिलर होता है, बट उसमें क्या होती है, जब आपने कस्टमर को अंडरराइट किया था, आपने उसका ओवरऑल क्रेडिट एक्सपोजर देख के अंडरराइट किया था. तो जैसे मान लो मेरे पास जब HDFC की कार्ड है, HDFC ने मुझे उस 0% EMI के लिए अंडरराइट नहीं किया. HDFC ने मुझे कार्ड इशू करते टाइम देखा कि ये कौन है, कितना कमाती है, वापस दे पाएगी कि नहीं, एंड यू नो ऑल ऑफ दैट. Whereas in buy now pay later, you are specifically underwriting for this product. So your underwriting process changes a lot. Yep. Your perception of how risk is going to play out. Plus it's a very small tenure product. आप 4 हफ्ते का देते हो, 6 हफ्ते का देते हो, not more than that. So underwriting is very different. Creating loyalty is a very difficult task in a buy now pay later product. तो वहाँ पे strategies बहुत अलग होती है compared to मैं credit card में क्या strategies करूँगी. Rewards, loyalty programs are, I would say, still very nascent in BNPL because the margins are razor thin. Negative ही है margins तो. Negative, close, tending to zero. level तो negative ही होंगे. हाँ, business level. कोई BNPL profitable नहीं world. अभी तो हाँ, like Zip did achieve profitability. But yeah, it was still a very razor thin margin. तो हमें पता होता था कि आप जो भी कर रहे हो मार्जिन ध्यान में रख के करो. तो जिप में आप 1.5 साल रहे? जिप में मैं 1.5 साल रही. और जिप का भी स्टोरी ये था कि जिप used to be this, so there was this US company called QuadPay, which was a buy now pay later, pure play buy now pay later in US, and Zip was a company which had invested in QuadPay. Got it. And Zip was acquiring QuadPay. और कॉस्ट अवदास थे CRO. Oh, of QuadPay. Of QuadPay. तो बॉस ने फोन लगाया ये हम कर रहे हैं, आ जाओ. कि देख एनालिटिक्स का टीम बनाना है, आजा और टीम बना ले. सही है, सही है बॉस, एनी डे. तो चले गए बनाने. और बड़ा इंटरेस्टिंग था बिकॉज जिप ने लाइफ में कभी ऑफशोर नहीं किया है, उनको पता भी नहीं ऑफशोरिंग होती क्या है. और हमने सेटअप शुरू से बनाया सब. दैट टू ऑल ऑनलाइन. सब ऑनलाइन. उस टाइम पे तो पीक कोविड था. वी हैड अ वेरी गुड पार्टनर company called Blue Cognition. It is headed by an ex-Amex person called Sangharsh and Mukesh Chamidia. ये क्या करते हैं? So Blue Cognition, नहीं, they are into multiple businesses. So we know Blue Cognition from our Cabbage days. क्योंकि they do a lot of things. जैसे आपकी manual underwriting processes होती है. अच्छा, BPO type. Not really BPO. They do more into risk ops. Then they also have huge, I would say, servicing teams with Amex and with PayPal. And they also have products of their own. जैसे बैंक ट्रांजैक्शन पासिंग के ब्लू सेंस नाम का कोई प्रोडक्ट है. Really not a big company, boutique company, but they are doing very good. Nice. So I met some great people there. Both Sangharsh and Mukesh have been like extremely, gracious with their time and advice. So वहाँ बनाया जिप के लिए टीम. और बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि लीगल स्ट्रक्चर ये था कि जिप हैज़ नो इंडिया एंटिटी. तो ऑन पेपर आपको ब्लू कॉग्निशन की एंटिटी यूज़ करनी है, पर आप काम करोगे जिप के लिए. तो मुझे याद है जब हम हायरिंग करते थे ना, तो हर पिच में मैं पहले जाती थी एक्सप्लो कॉल पे, क्योंकि मुझे हर किसी को ये एक्सप्लेन करना होता है भाई ये दूसरी कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है, पर आपका स्ट्रक्चर ऐसे. क्योंकि हमारा जो रिव्यू होता था, परफॉर्मेंस रिव्यू, आपको कितने पैसे मिलने, इंक्रीमेंट कितना मिलना है, बोनस कितना मिलना है, वो सारा जिप से आता था. ब्लू कॉग्निशन वाज जस्ट द कंडुइट आउट देयर. स्टाफिंग ही हो रही थी एक तरह से स्टाफिंग हो रही थी, बट वो एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है. अच्छा, मैंने ऑफर लेटर भी बनवाया वहाँ पे कि ऑफर लेटर कैसे लिखना पड़ेगा, हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस. वेरी टफ टू स्ट्रक्चर इट. तो वो मैंने सीखा. और मुकेश ने और कौस्तव ने मुझे बहुत सिखाया वहाँ. तो उसके बाद आप किसी कंपनी में 2 महीने के लिए काम करते हो? नहीं, वाइस केम इन between Cabbage and Zip. 2 महीने की क्या था इस कंपनी का? आप बात I think it was a bad fit.
It was just कैसे मतलब विदाउट नेमिंग अबाउट दिस कंपनी जनरली 2 महीने में कोई कैसे कॉल लेता है? हाउ डू यू नो इट्स अ बैड फिट? यू डोंट नीड टू टॉक अबाउट दिस एग्जांपल जनरली. मुझे लगता है when you go and you realize के the company what they want to do and what I offer are two very different dimensions. बहुत जनरलाइज्ड स्टेटमेंट हो गया. मुझे थोड़ा सा कुछ तो बताओ. I think see it usually the way I would look at it is या तो आपको वो कल्चर बिल्कुल नहीं सूट करता है या तो आपको लगता है कि नहीं भाई ये काम तो इनको चाहिए ही नहीं, इनको कुछ और काम चाहिए, राइट? तो मेरे लिए ये 2 मेन फैसेट्स होते हैं. तो मुझे जो स्ट्रगल मिला वो मुझे दोनों में मिला और मुझे लगा कि ये तो मुझे एक चीज बताओ कि ज्यादातर लोग अगर 1 या 2 महीने या 3 महीने के काम करते हैं वो अपने लिंक्डइन में डालते ही नहीं है. आप क्यों डालती हो? आप समझ रहे हो? आई एम श्योर आपने सोचा होगा कभी कि हटाई देती हूँ, क्यों जरूरत हाँ, इट्स अ वेरी फेयर क्वेश्चन. आई पुट इट बिकॉज आई हैव अ गुड रिलेशन विद देम. अच्छा, व्हाई नॉट? फेयर इनफ. इट्स अ इट शोज द ऑनेस्टी. या एंड क्यों नहीं, मैंने किया है. फेयर इनफ, आई अप्रिशिएट इट. कोई मेरा आईटीआर चेक करो, वो 2 महीने मिलेंगे ना आपको, तो क्यों नहीं? फेयर इनफ, आई एम हैप्पी टू आंसर, व्हाई नॉट, नाइस, है ना? सो वो मुझे a lot of people do that, right? You know. No, you are 100% right. And वो ना मुझे थोड़ा OCD हो जाता है. मैंने वो किया तो. So I went there and then तो वाइस के बाद I came to Zip, built the team, almost stayed there for 2 years. And then you left in 2022. 2022 June, I joined Razorpay. And that time, 2022, still it was a bull run in the startup ecosystem. हाँ. मतलब वो bull run Stabilize हो रहा था. हाँ, हो रहा था, but bull run तब भी था उस time. हाँ, bull run था. और Razorpay, I think at that time had become valued at like crazy amounts of money. 7.5 हमने जैन में हिट कर ली. हाँ, तो मतलब I think इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप था उस टाइम पे. तो मतलब क्या सोचा, किससे बात हुई and how has it been? सो Razorpay का बड़ा इंटरेस्टिंग सा था. सो एक्चुअली क्या हुआ, पोस्ट कैबेज मैंने जो भी रोल्स उठाए हैं ना, और रादर आई वुड से सिंस कैबेज फिनटेक में मैंने रोल्स उठाए हैं, जॉब्स नहीं उठाए हैं. That is a major difference that I have done in my career, and I constantly want to keep doing that. तो Zip में when I was there and towards the end मुझे ना ये फीलिंग बड़ी स्ट्रांगली आ गई थी कि टीम बड़ी तगड़ी बन गई है, फ्लाईव्हील बन चुका है मेरा. और यहाँ मैं और एडिशनली कुछ खास ऐड नहीं कर रही हूँ, बट मुझे इंडियन फिनटेक सिस्टम में काम करना है. क्योंकि अगर आप मेरा करियर देखो, विप्रो इज द ओनली इंडियन कंपनी, बट वहाँ भी मैंने किसी इंडियन क्लाइंट के लिए काम नहीं किया. तो मैंने ना लाइफ में एक्सेल में डॉलर के अलावा और कोई नंबर नहीं डाला है, रुपी नहीं डाली कहीं पे. तो वो सीखना था मुझे कि इंडियन फिनटेक क्या करती है. तो nothing better than Razorpay. And they somehow कोई कनेक्शन बन गया, somebody reached out and they said कि lending करना है हमको. तो आपने तो किया है lending, तो आ जाओ lending करो. And I had like a lot of rounds of discussions, interviews. I've heard there are many rounds. There are actually many rounds, and we are trying to actively streamline our interview process. But हाँ किया, वो सारे conversations किए. But you know what I loved about this whole thing was how supportive Zip was of this. Yeah, my boss knew it even when I was interviewing. Wow. By that time, Kostav had moved out. He was starting something of his own. So I had a different boss. Even my CEO knew about it. And when I told them कि मेरा इंटरेस्ट ना इंडियन मार्केट में है, मुझे अभी अपने मार्केट का कुछ सीखना है, आपको धंधा देखना है, they were so supportive. And that's something I carry with me. कि they were the boost. मतलब मेरे साथ ऐसा भी हुआ है that Razorpay के इंटरव्यूज दिन में होते हैं ना, मतलब आप दिन डे वर्किंग आवर्स. So I've actually told my boss मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, नहीं आज नहीं आ सकती. तो मेरे बॉस ने एक्चुअली मुझे शाम को मैसेज करके पूछा, hey, how did it go? कैसा था कॉन्वर्सेशन? एंड ही केप्ट टेलिंग मी कि you will be well taken care of, right? मतलब you will be working with good people, right? Will you get the love that you get here? And ये मेरे लिए बड़ा point था कि will the culture be as good as Zip? And how has been it? It's been very good. It's been very good. Very different culture. Very different culture from. So Cabbage and Zip had very similar cultures. और एक reason ये भी है कि leadership Cabbage की काफी Zip में थी. तो थोड़ा बहुत एक वहाँ पे भी overlap हो गया. Indian market, Indian culture, Indian businesses are very different from how US businesses are. अगर हम Razorpay के देखेंगे, the founders are very young. Yeah. I think Harshal and what is. I think Harshal and SHK's both hit 30 just a while back. Very young people. तो DNA कंपनी का different होता है. हाँ. With the young founders, I'm assuming. तो आप थोड़ा एक Razorpay के context में बताओ, in a
यंग वे, इन अ जेन ज़ी वे, हाँ. क्या क्या चीज़ें आपने लर्न की है जेन ज़ी यंग लोगों से फ्रॉम इन रेजर पे? आई थिंक एक होता है हसल, एक होता है बिजी वर्क. मैंने रेजर पे में हाउ टू डिस्टिंग्विश द टू ये सीखा है. बिकॉज बहुत ईजी हो जाता है एक आप हमेशा भाग रहे हो. क्यों भाग रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो, क्या चाहिए. उसको जब आप अलग करके आप जेन्युइनली हसल की तरफ फोकस करते हो कि आई हैव अ बायस टुवर्ड्स एक्शन एंड आई वांट टू गेट समथिंग डन. वो चीज़ मैंने रेसिपी में आके बहुत अच्छे से सीखी और वो मैं कांस्टेंट सीख रही हूँ. एंड व्हाट आई लव अबाउट माय करंट जॉब इज हाउ मच इट कीप्स मी ऑन माय टोज. नो 2 days आर सिमिलर, नेवर. आसान नहीं है. नहीं, आसान या डिफिकल्ट वाली बात आती नहीं है यहाँ पे. आई एम कॉन्स्टेंटली लर्निंग समथिंग. Whether it is जैसे I started with the lending business, now I lead teams in customer success analytics and banking ops and all of that. तो मतलब मेरी भी ट्रेजेक्टरी चेंज हो गई. एक साल के बाद मुझे बोला कुछ और कर लो अभी. और आई थिंक हाई ग्रोथ कंपनीज का फायदा ये होता है आपको ना वहीं पे इतना कुछ मिल जाता है. हाँ. कि मैंने किसी से आई वाज टॉकिंग आल्सो कि इवन दो यू विल फील यू आर शिफ्टिंग जॉब्स बट यू आर इन द सेम कंपनी. एग्जैक्टली. तो मेरे साथ रेजर पे में वही हुआ. व्हेन आई टुक अप दीज न्यू टीम्स जस्ट 2-3 months बैक, आई एम द डम्बेस्ट इन द रूम क्योंकि मुझे पता नहीं है. मैंने तो लेंडिंग की है पूरी लाइफ और ये पहली बार मैं पेमेंट गेटवे पे दिमाग लगा रही हूँ. तो मेरे टीम के बच्चे मुझे बैठ के वो फिग्मा फाइल ड्रॉ करके बता रहे कि थोड़ा सीख भी जाओ ये. है ना. सो आई लव्ड इट एंड यू आर ऑलवेज रनिंग एंड आई लव दैट. तो आप स्टार्टअप इकोसिस्टम में हो एंड जो हमने देखा राइट विद इंटरेस्ट रेट्स गोइंग थ्रू द रूफ, लिक्विडिटी इन द मार्केट वेंट डाउन एंड फॉर पीपल हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इन अ वेरी सिंपल वे, जो आपके फंड्स होते हैं जो पैसा लगाते हैं इन स्टार्टअप्स इन इंडिया, ये फंड्स के होते हैं एलपीज, लिमिटेड पार्टनर्स, एंड दीज लिमिटेड पार्टनर्स आर यूजुअली पेंशन फंड्स एंड स्टफ लाइक दैट. एंड ये लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं अपनी पैसे की, आर्बिट्राज देखते हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में एक ऑप्शन होता है मैं बैंक में पैसा लगा दूं, एक होता है मैं स्टार्टअप को दे दूं. करेक्ट. तो बैंक में जब रिटर्न इतने हाई आ रहे हैं बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़े जा रहे हैं, तो बहुत लिक्विडिटी ड्राई डाउन हो गई इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम. तो जो स्टार्टअप इकोसिस्टम करेंटली है फिनटेक के बारे में थोड़ा बताओ. इंडिया में क्या चल रहा है फिनटेक में, आप उसको बहुत क्लोजली देख रहे हो. सो हाउ इज द स्टार्टअप इकोसिस्टम फॉर फिनटेक इन इंडिया एंड व्हाट आर योर थॉट्स कि फ्यूचर में क्या होगा? The one thing that we are learning in the fintech ecosystem is how to do more with less. And this is not because पैसे नहीं है. मैं आपको genuinely बता सकती हूँ कि जो अच्छी businesses है ना, solid businesses है, जिनकी आप अगर बैलेंस शीट्स देखो तो आपको दिखेंगी कि एक प्लान है, एक विजन है, एक रन रेट है. उनको पैसे की कमी नहीं है. द पॉइंट इज एवरी पेनी इज मोर वैल्यूएबल नाउ. बिकॉज एज यू राइटली सेड, जो एक हमने फंड का जो इन्फ्लक्स देखा था कोविड के टाइम पे, वो काफ़ी जगह से आई थी. वो इट केम राइट फ्रॉम योर पीपीपी चेक्स इन द यूएस टू द एडिशनल फंड दैट द गवर्नमेंट्स पम्प्ड इन टू रिवाइव द इकोनॉमी एंड पीपल सेड कि अरे लेट्स कम टू दीज इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड पुट मनी देयर. तो वो वाला फेज अभी नहीं है. ट्रेजरी बिल्स आर वर्थ बेटर नाउ, सो पीपल आर पुलिंग बैक देयर फंड्स. बट in the fintech system, we are now sitting at a place where companies who will think like matured companies are the ones who will be able to make it. तो मायोपिया का ज़माना गया. अभी आप एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 1 साल का नहीं सोच सकते. The companies who can truly stand up and think कि मैं अगले 5 साल में कहाँ जाने वाला हूँ. And usually बहुत कॉमन होती है ना कि हम 4 साल 5 साल की बात करते तो बोलते हैं आप IPO जाओगे क्या, या आप और फंड्स उठाओगे क्या. दैट कैन नॉट बी योर लेंस. योर लेंस हैज टू बी स्क्वेयरली योर प्रोडक्ट और योर सर्विस. वो 5 साल में कहाँ जाने वाली है, तो वो इम्पोर्टेंट है. तो फिनटेक इंडस्ट्री में लोग इतना बुलिश है भी इंडिया में, फिनटेक, फाइनेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज क्यों है? कुछ डेटा है या कोई रीजन है, क्या है? व्हाई इज एवरीवन सो बुलिश? सो व्हाट फिनटेक्स डिड वाज वी ब्रोक एलिटिज्म ऑफ बैंक्स. इंडिया में इतना बड़ा आपका पॉपुलेशन है, हाउ मच ऑफ इट इज बैंक्ड? हार्डली बैंक्ड है, राइट? जनधन योजना थिंग्स हैव चेंज्ड. नहीं, जनधन योजना हैज चेंज्ड थिंग्स, बट प्लीज गो एंड चेक हाउ मेनी ऑफ दोस अकाउंट्स हैव बैलेंसेस. ट्रू. राइट. तो आपने ये बोल दिया कि आप चले जाओ किसी गांव में और आप किसी को बोल दो कि आपको जो सरकार से सब्सिडी आती है वो सब्सिडी आने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है.
वो बोलेगा कि अच्छा ठीक है मैं अकाउंट तो खोल लूँगा, बट आपको पता है मेरा जो ब्रांच है वो मेरे से 50 किलोमीटर दूर है, मैं क्या वहाँ जाऊँ पैसे उठाने, राइट? तो आपने वो सोल्यूशन जो इसको क्या चाहिए, इसको एक्सेसिबिलिटी चाहिए और उसको ईज चाहिए। आप जब भी उस आदमी के सामने 5 फॉर्म रख दोगे ना, you lost the battle there. That is what we broke. Any fintech in India who've been successful, the core of our existence is the people of this country. And I take immense proud to be associated with a company like Razorpay, where we said, let us enable businesses who do that. We always say that we exist because businesses exist. And we want to make money movement extremely simple for businesses. क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो कोई फाउंडर है वो अपने कंपनी के बारे में सोचे, वो अपने बिजनेस के बारे में सोचे, वो ये सोचे हाउ इज ही और शी गोइंग टू प्रोपेल इंडिया फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ. पैसे का मूवमेंट हम देख लेंगे एंड वील डू इट इन द cleanest possible manner. So those are the fintechs who will succeed in India. And I think that is why fintechs are they're bridging that gap, you know. वो elitism नहीं है आपको. अभी आप देखो सारे fintechs इतना कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने कस्टमर सर्विस में, हम अपने जो लैंडिंग पेजेस है, हमारे ऐप्स है, जो भी है, कैसे उसको वर्नाक्युलर करें, कैसे उसमें हम बहुत सारी जो इंडिया की जो यू नो द डाइवर्सिटी फैब्रिक, उसको मैं कैसे लेके आऊँ. So you will see a lot of those efforts coming in. Those are the companies which are actually becoming successful. So I think that's why fintech is so special. तो fintech के अंदर से मेरी आपसे I think 6 महीने पहले ही बात हुई थी. We were discussing about Gen AI applications. Yes. And अब आप fintech industry के एकदम हार्ट पे you are sitting there. तो Gen AI का use case कैसे कर रहे हो आप लोग, या आप लोग generally बताओ, not just Razorpay, generally how can fintechs use Gen AI? देखो पहली बात तो ना मुझे ना ये लगता है कि पहले वी ऑल शुड टेक अ डीप ब्रेथ, स्टेप बैक एंड अंडरस्टैंड दैट जेन एआई इज नॉट अ जीनी. वो अलादीन के लैंड से जीनी नहीं आया है, राइट? एंड एवरी प्रैक्टिशनर इज स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस कि दिस इज नॉट अ जीनी. तो all the fear, all the trepidation, all the excitement that is there, which is great. बट nobody is, कल उठ के दुनिया नहीं बदलने वाली है जेन एआई से. जेन एआई के कुछ इंटरेस्टिंग यूज केसेस आ रहे हैं, पर्टिकुलरली जो आप लैंग्वेज साइड में देखो, क्योंकि दीज आर ऑल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. देन यू ऑल्सो हैव योर पिक्चर जनरेशन, योर वीडियो जनरेशन, जो भी आपके मॉडल्स हैं. अभी तक हमें जो यूज केसेस वायबल दिख रहे हैं, they are more in terms of, let's say, how do I make my communication simpler with my customer. Now to give you examples, हमने Razorpay ने एक आई थिंक 3 महीना पहले हमने एक कैंपेन किया था जहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स में हर रोज़ हमारे 45 डेज तक हमने किया. 45 फाउंडर्स ऑफ इंडिया वर सेलिब्रेटेड. My neighbor also was in it, Vidit. Okay, Vidit Atre. Yeah. अच्छा, Meesho. Yeah. So I saw. It looked very cool. वो मिड जर्नी से बनवाई थी ना? वो मिड जर्नी से हमने बनवाई थी. बहुत cool था. तो वो हमने एक यूज केस निकाली. अभी भी आप हमारा रिसेंट क्रॉस बॉर्डर का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उसके भी अगर आप एड्स देखो हमने मिड जर्नी से बनवाई है. तो हम बड़े क्लियर है Razorpay में, हम ऐसा कुछ भी यूज केस नहीं करेंगे जो डायरेक्टली मेरे कस्टमर के पैसे को इम्पैक्ट कर रहा हो या मेरे कस्टमर के बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा हो. सिस्टमिक रिस्क बहुत ज्यादा है ना, बिकॉज मुझे 100% श्योर होना है कि जेन एआई इज करेक्ट है. नहीं वही प्रॉब्लम है, राइट? 99.9 भी नहीं चलेगा. एग्जैक्टली. हम नहीं कर सकते बिकॉज आई एम मूविंग समबडीज मनी. कंप्लायंस इज टू स्ट्रांग. एग्जैक्टली. सो आवर यूज केसेस आई वुड से आर ऑन द क्रिएटिव साइड. And another use case which we are also exploring, and I think a lot of our peers in the industry are exploring, कि आप इंटरनल और एक्सटर्नली कम्युनिकेशन को कैसे स्ट्रीमलाइन करो. वर्कफ्लोज को स्ट्रीमलाइन करो. वर्कफ्लोज जैसे मान लो मेरे पास जब यू नो कोई कस्टमर का टिकट कोई रेज करता है, कोई इशू को लेके टिकट रेज करता है, हाउ कैन माई ईमेल्स बी मोर एम्पैथेटिक, how can my emails be better streamlined? Or let's say for my agent, to boost my agent's productivity, how can I make sure that knowledge is easily available to him? वो अभी 50 FAQ पेजेस पढ़ेगा क्या बैठ के? How do I make it streamlined there? तो हमें अभी वो यूज केसेस ज़्यादा दिख रहे हैं. Another thing is, you know, अभी क्या हो गया है, and I think I will quote Sameer Dhanranjani here. Sameer keeps saying कि analytics बड़ा abuse सा term है. And I 100% agree with him. ये हमारे दिमाग में भी आ गया है कि AI is equal to Gen AI.
वो मुझे ना बड़ा शौक है, मैं इधर भी हो तो मैं कहीं वो वेन डायग्राम फिर से बनाऊं। एआई होती है, फिर उसके देखो एमएल भी होता है, डीप लर्निंग भी होती है, मतलब यू नो एआई इज नॉट ऑल जेन एआई। एंड वी हैव बीन यूजिंग एमएल्स फॉर एजेस। हम अंडरराइट कैसे करते हैं, 10-15-20 years. हम अंडरराइटिंग कैसे करते हैं। ये जो मेरे जब किसी मर्चेंट का आप कहीं पे पे करते हो राइट, और रेजरपे के थ्रू पेमेंट जाती है, पीछे मेरे मॉडल्स चलते हैं कि कौन से बैंक के सर्वर से आपको राउट करवाऊं, कहाँ से आपका सक्सेस रेट बेटर आ जाए। तो अभी जेन एआई लेके आई थिंक वी आर ऑल वी नीड टू टेक अ डीप ब्रेथ. Take a deep breath. Perfect. Cool. So I think last segment, where we'll just want to know a bit about introspections from your journey Yeah. that you have seen, good things that you think everyone should follow, that we can learn from your journey, and certain things you just believe that we can learn from in a different way. Interesting. See, I think I started my career at a time जहाँ पे एनालिटिक्स तो आ गया था इंडस्ट्री में, बट एनालिटिक्स को एग्जैक्टली आप प्लेस कैसे करोगे, वो एक्सपेरिमेंटेशन तभी भी चल रहा था. टू सम दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ केपीओ, राइट. टू सम कंपनीज इट वाज कि नहीं बड़ा कूल सा चीज़ है, डैशबोर्ड बना देंगे, मॉडल बना देंगे, बड़ा कूल सा चीज़ है. The one aspect which I think I have learned the most and I want to propagate the most is no business model, no competency is useful for a business unless there is a value generation aspect of it. Obviously. You cannot sit in analytics and you cannot say कि भाई मेरे पास एक क्रिस्टल बॉल है, उसके अंदर डीप लर्निंग होती है, न्यूरल नेट होता है, पता नहीं क्या होता है, मैं आपको देखने भी नहीं दूंगी उसमें क्या होता है, उससे मैं आपको कुछ निकाल के दे दूंगी. अब मैंने निकाल के देना था, मैंने दे दिया, अब उसका आप क्या करोगे मुझे नहीं पता. Right. We cannot work that. Agreed. That value generation has to be there. And I think the way for this industry to mature is to understand how can I intrinsically root myself into the business. I'm a huge proponent of data democratization. ये क्यों है कि आपके पास एक स्पेसिफिक टीम है जो रिपोर्ट बनाती है. अभी इतनी टेक्नोलॉजी मेरे पास अवेलेबल है, आप अपने डेटा मैनेजमेंट को, डेटा आर्किटेक्चर को इतना स्ट्रॉन्ग करिए दैट योर ऑप्स टीम्स, योर सेल्स टीम्स आर एनेबल टू पुल देयर ओन नंबर्स. आप आपके ऊपर क्यों रख रहे हो ये डिपेंडेंसी. तो ये मैच्योरिटी अभी इंडस्ट्री में आ रही है. A lot of companies are thinking towards this, and I think somewhere the whole, you know, this Gen AI and also the whole aspect of doing more with less has started propelling this. So I think that's a very good direction that that the industry is taking, and I'm looking forward to that. Perfect. I want to see how well we can scale up in terms of value generation. Perfect. So Nani, just more like if we, we like to understand people's rituals, right? Like what has worked for them, what has not worked for them. So if you tell from your overall lifestyle, the way you look at mental well-being, physical well-being, so on and so forth, how do you keep yourself updated? So certain hacks, certain things that have worked for you, anything. Sure. So, when I initially came to Bangalore, वो पहली बार घर से बाहर, और एक्चुअली जब मैंने विप्रो में ही काम शुरू किया था, तो वो सारा दिन डेस्क पे बैठो और खाते जाओ गलत चीज़ें, है ना. तो मैं बड़ा फूल गई थी. अच्छा. और वो मेरी लाइफ का बड़ा डाउन पीरियड था, बिकॉज आई फेल्ट लाइक यार इफ आई कैन टेक केयर ऑफ माई ओन बॉडी, ट्रू, देन समथिंग इज रॉन्ग. आई एग्री. राइट. So I got back to fitness around 2016. Okay. And that has been a constant. Nice. आप क्या करती हो fitness के लिए? So I love to work out, like the usual workout. I've now started becoming a lot more differentiated in my ways of workout. तो पहले मैं बहुत ज़्यादा focus करती थी on strength training and all. I've now incorporated a lot of Pilates and yoga in my workouts. Very good workout. Cult, yeah. And I am that person in the gym जिसके साथ बात मत करो. अच्छा, हेडफोन लगा के बात मत करो. आई एम हियर टू डू माय वर्कआउट. तो सीरियस काइंड ऑफ पीपल. हाँ, आई एम दैट वेरी. डोंट डू स्मॉल टॉक इन द जिम. Got it. No gym friends, but extremely good friends with a few trainers. So वो भी है. So yeah, I like that. I love my running. I had till 2019-20 I was running fairly well. I had a small injury, so abhi I'm still being a little cautious about my runs. But for me, runs are
absolutely nothing to do with वो marathon कर लेना है या वो. For me, it's when I'm with myself. और कुछ नहीं सुनाई देता है. That is my mantra of a run. I have actually been very bad about taking care of my mental health. I have made that mistake. In fact, आप वो mistake की बात कर रहे थे ना, मैं अगर mistake बोलूँ तो मेरा सबसे बड़ा mistake वो था, क्योंकि I would give myself all in, and I wouldn't come back. I've started putting a lot of efforts on that now. I've started putting a lot of efforts. It's very important. It's very important because मेरी productivity hamper हो जाती है. सबकी वो, I think people realize it at different parts of their life. हाँ हाँ. So वो I started becoming very cautious. That how do I take good care of my mental health? So Everyone should. Everyone should, and I think the younger you start, the better it is. Also, Raghav, I believe last 10-15 साल में ना दुनिया में information overload बहुत ज़्यादा है, exponentially बढ़ा है. Insanely. And that really impacts your mental health. Yes, सबको देखते हैं तो ये. अभी we were discussing that only कि LinkedIn. Oh God. LinkedIn पे now you go, it's become the new Facebook. It's become the new Facebook. Who knows when we will see those reels, right? Yeah, on yeah, LinkedIn. Yeah, yeah. Like it's so difficult to cut the reality from what you're trying to show. Yeah. And मुझे लगता है वो एक constant need होती है to show कि मैंने भी ये किया, मैंने भी वो किया, right? So actually there's a joke that I often make with my husband कि अच्छा हुआ हमने काफी साल पहले शादी कर ली, क्योंकि हमने फिर अपने लिए शादी की थी. अभी करते तो Instagram के लिए शादी करनी पड़ती. Well said, true. Right. So thankfully हमने बहुत पहले कर ली. And none of my wedding photos are in any social media. फोन में आपके पास? मेरे पास मेरे कहीं किसी ड्राइव में पड़ा होगा. ड्राइव में पड़ा होगा. तो आई थिंक वो मेंटल हेल्थ मैंने बहुत इग्नोर किया और मैंने बहुत सीखा, मैंने बहुत सफ़र किया उसके लिए. एंड आई हैव स्टार्टेड प्रायोरिटाइजिंग दैट अ लॉट. And obviously I have, we have parents who are at that age when you can see the age taking toll on them. Right. So both of us are only children of our parents. So वो एक हमेशा रहता है, मतलब I never go to sleep without my phone being on ringer. अच्छा. मुझे वो बड़ा एक रहता है कि रात को फोन आया तो. Right. तो वो एक है. I think those are things I've learned. I've grown with them now. So work to me is still probably the major part of what defines me. I'm exploring other facets of my life, other facets of my being. Makes complete sense. So one final question. I'm 23 years old. So if you had to give advice to a 23-year-old who is just trying to build a career, have a good life in analytics, give us advice. And obviously you can break that advice into two parts. One can be generic. One can be more focused towards the female population, because in AI and analytics we need more female leaders. So yeah. Sure. I think, see, first and foremost, I don't think I need to give any advice to you. You're doing so well that I should be the one learning from you. But मेरा general जो observation है, because I work with a lot of young people in my team, is India is at a very interesting place right now. मैं जब अपने टीम में भी आजकल मेरे जो कैंपस ज्वाइनीज आते हैं, मेरे जो यंग टीम मेंबर्स आते हैं, a lot of them are from tier 2s and tier 3s. Exactly. The talent pool that you are looking at, right? Right. Or the one thing that differentiates the really successful ones is the humility to learn. And you know, ये हम सबको लगता है कि हाँ सीख लेंगे, उसमें क्या है. एक ना सीखने के लिए ह्यूमिलिटी होनी चाहिए. ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि नहीं आता है और सिखा दो. और कोई अगर आपको सिखा रहा है तो they are not schooling you. Yeah. Right? They are trying to do something which will add value to your life. आप ही का फायदा होगा. आप ही का फायदा होगा. तो वो ना मुझे थोड़ा एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आजकल बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखता है. Very true. Which I would request कि मत करो. क्योंकि पर्टिकुलरली जो एनालिटिक्स डेटा साइंस वाली दुनिया में आ रहे हो या टेक की दुनिया में आ रहे हो, हमारी जो दुनिया है ना वो हर 5-5, 10-10 साल में बदल रही है. उल्टी हो जाती है. पूरी उल्टी हो जाती है. तो क्या होता है कि वो जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाली जो चीज़ होती है ना, वो आप कहीं भी पहुंच जाओ. जैसे वन ऑफ द पीपल आई कंसिडर अ रोल मॉडल इज पंकज राय. राइट? तो आज भी मतलब हमेशा सीखने में लगे रहते हैं. मतलब आपको क्या जरूरत है? एग्जैक्टली. आप पंकज सर से कहीं मिलो, वो
तभी भी आपको बोल रहे होंगे मैंने ना ये सीखा आज नया, हाँ, always. राइट? He keeps sending me reels on Instagram where he's learning. मतलब what? Exactly. And I'm like, आप लेके आए हो ये इंडस्ट्री इंडिया में, Agreed. तो वो वाली ह्यूमिलिटी ना चाहिए. Yeah. तो दैट इज माई ओनली एडवाइस कि आप आँख कान खुले रखो, उतनी ह्यूमिलिटी रखो कि चीजें बदलेंगी, हमको सीखना पड़ेगा साथ में, एंड देन द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर. सो दैट इज माई एडवाइस. आई थिंक पर्टिकुलरली फॉर द यंग लेडीज आउट देयर, राइट? एंड व्हाई यंग, इवन माई पीयर ग्रुप, राइट? हम बड़े अंडरसेल करते हैं खुद को, बहुत ज्यादा अंडरसेल करते हैं. ये लेके मेरी सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन सुप्रिया के साथ होती है, सुप्रिया डांडा. वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट. यस, and I agree to her observations, and they are very data backed, by the way. So I think मैंने भी किया है और मैं अभी भी करती हूँ, to be honest. I'm learning, तो I'm nobody to preach there. But एक तो है obviously यार social issues है, या आपके पास constraint होती है, family की constraint होती है, but और ये शायद मेरा ज़्यादा request होगा parents को, particularly parents of girl child, कि एक होता है ना मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड, नहीं, चाइल्ड है, इंसान है. तो जैसे हम बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, हर इंसान का एक इंडिपेंडेंस होना चाहिए खुद के रोटी कपड़ा मकान के बंदोबस्त करने का. Agreed, very true. एंड दैट इज बियॉन्ड जेंडर, फर्क नहीं पड़ता कौन से जेंडर के हो आप. एंड दैट इज द थिंग विच आई वुड होप दैट विमेन इम्बाइब अमंग्स्ट देमसेल्व्स. ये चीज़ क्यों है कि यू नो, हाँ सुनने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, हर कोई आपके साथ उतना पेशेंट नहीं होगा, या सी देर आर पीपल जो अनोइंगली आपको यू नो एक जेंडर बायस दिखाएंगे, देर आर पीपल जो जेन्युइनली मिसोजिनिस्ट आपको दिखाएंगे जेंडर बायस. ये थोड़ा थिक स्किन ज़रूरी है यहाँ पे, कि अच्छा ठीक है आपने बताया, अच्छी बात है, ये मेरा गोल है, मैं तो जा रही हूँ, आप देख लो कैसे रोकोगे, राइट? तो वो थोड़ा सा ना, यू हैव टू कीप दैट वॉरियर स्पिरिट अप, एंड देन इट वर्क्स आउट. Perfect. I think this will help us a lot. A lot of people who are watching this, I think what I personally can tell from Indrani's journey is that, you know, you have to have that domain flavor. In this industry, what I've seen is domain is extremely critical. And मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, financial services, fintech, you're talking about this. Yeah. You might do something else later on. But again, this domain flavor gives you confidence that even at your age, you're not like, your age is not typical of a leader's age, right? Normally leaders are like 45 and all of that. Yeah. But because you are focused on what you're doing, you're able to have that intellect, that decision-making thought process that defines you better. So I think that is one thing I think everyone should learn from your journey, especially the young people who are watching. That if you can be a bit more domain focused, it will give you results faster. Yeah, one is domain focused, and stay true to your craft. I don't introduce myself as a fintech leader only. I say I'm an analyst in a fintech world. Yeah. मेरा craft अभी भी analytics का है, और stay Agreed. true to that craft. जी. क्योंकि वो craft आपको fintech में भी काम आएगा, Retail और में भी एविएशन आएगा. इंडस्ट्री में हर भी जगह काम आएगा, आएगा. हर जगह काम आएगा. एंड ज़्यादा कंफर्टेबल मत हो जाओ, वो रजाई ओढ़ने Yeah, well का said. टाइम है, Comfortable हो जाओ. उतना कंफर्ट अच्छा नहीं है, थोड़ा सा वो दैट यू नो वो Right. रहना चाहिए, वो थोड़ा सा एक कि पागलपंती थोड़ी ज़रूरी होती है ना. सो दैट इज आई थिंक दैट्स व्हाट हैज ड्रिवन मी सो फार. लेट्स सी वेयर वी गो. Perfect. So Indrani, thank you so much, Abhay. Really appreciate your time, and let us do this conversation again in a year and a half, and that time we'll talk about in detail या about कि Gen AI की बात करेंगे थोड़ी तब ज़्यादा, कि हुआ क्या. क्योंकि अभी जैसा आपने बोला कि Gen AI is not a genie, सब कुछ सॉल्व नहीं कर रहा है, बट काफी चीज सॉल्व कर भी रहा है. यस, So let's see how the world changes. एब्सोल्युटली. Perfect. Thank you, Indrani. थैंक Appreciate यू your time. राघव. Thank you. थैंक्स.